Hello, welcome to EduTech Learn and Grow. In this module, we will understand some important biology questions which are very frequently asked and are important from all the civil service exams point of view. So these are the questions which are important and have a very high scope to be asked in your examinations. So let's begin. The very first question is, who was the first to isolate the gene? Now we should understand that what do you mean by gene? Gene is simply the segment of the DNA. It is the segment of the DNA. Now what do we mean by DNA? DNA is a very important biomolecule. It is a molecule which is present in all the living cells. It is like, you can assume it to be the brain of the cell. Okay, this DNA is responsible for controlling each and every activity which is happening inside the cell, and iska hi part, if this is the long DNA, so the very short segment of the DNA is what is called as gene. So the very first time the gene was isolated by Dr. Hargobind Khurana. Second question is, which cell organelles function as the powerhouse of the cell? Now understand this. Powerhouse of the cell is the one which is going to produce energy. Okay, every cell requires energy for the functioning. Okay, हर एक सेल को एनर्जी बनाना पड़ता है अगर उसको डे टू डे एक्टिविटीज कैरी आउट करना है, अगर उसको डे टू डे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस करने हैं उसके सेल के अंदर, तो उसको डेफिनेटली एनर्जी लगता है, और वो एनर्जी आता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज ATP. ATP इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एंड ये जो ATP बनाने का प्रोसेस है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड देयरफॉर एज सेल का एनर्जी बनाने का जिम्मेदारी माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर है, उसको आप बोलते हो पावर हाउस ऑफ द सेल. नेक्स्ट, नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट जेम्स डी वॉटसन is known for his work in which area? James D. Watson was the scientist who discovered and understood what is called as DNA. Okay, Watson and Crick were the two scientists who understood the DNA, who found out the entire structure of the DNA, and therefore, as understanding the study of DNA comes under one branch which is called as genetics, so therefore James Watson is very well known for the branch of genetics, which is the branch of science which deals with the study of skin of man. Now understand, guys, skin of man, that is the entire tissue. Okay, the skin, which is the layer which protects you from all the external environment, is actually the protective barrier which comes under one branch of medical science called as dermatology. Dermatology is a subject, it is a study in which you understand the entire structure, the function of the skin and the tissue. Next question, which test helps in diagnosis of cancer? Very important. Cancer, as we all know, cancer is a cell which is rapidly dividing. बहुत तेजी से डिवाइड करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेजी से डिवाइड करता है, एंड ये बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है. तो एनी टाइम अगर डॉक्टर्स को ये फाइंड करना है कि ये पेशेंट के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप का कैंसर है या नहीं है, if that particular cancer is present or not present, we generally go with one test which is called as biopsy test. What happens in biopsy test is they actually take the sample of the concerned tissue. If it is a skin cancer, then they will take a sample of a skin tissue. If it is a liver cancer, they might take a sample of a liver tissue. If it is any other kind of cancer, they are going to take that particular organ या tissue का sample, they are going to analyze it and then confirm कि इसको cancer हुआ है या नहीं हुआ है. So जो test ये confirmation हमें देता है, वो test को आप बोलते हो biopsy test. The filtering of the blood through artificial kidney is called as. Now
वेनेवर जब भी कोई पेशेंट है उसके अंदर अगर कोई किडनी फेलियर आ जाता है, किडनी फेलियर मतलब जहाँ पे आपके किडनीज बराबर से फंक्शन नहीं कर रहे हैं या जहाँ पे बराबर से काम नहीं कर रहे हैं, वो टाइम पे हम लोग को पेशेंट को एक मशीन पे चढ़ाया जाता है, वो एक मशीन पे उसको लगाना पड़ता है जिसको आप बोलते हो डायलिसिस मशीन। नाउ दिस डायलिसिस मशीन, इसका काम क्या है? डायलिसिस मशीन विल फंक्शन टू रिमूव द वेस्ट। एग्जैक्टली किडनी का काम करता है, एग्जैक्टली किडनी का काम करता है ये। एंड जिनका बॉडी के अंदर, जिनका किडनी काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, दोज पेशेंट्स आर given or their blood is completely purified with the help of this machine which is called as dialysis machine. So dialysis machine is also called as artificial kidney. Okay, it is very important to understand. Animals store glucose in the form of dash. Now understand, anytime animals, we also humans, जब भी हम लोग खाना खाते हैं, जब आप खाना कंज्यूम करते हो, तो हमेशा ऐसा नहीं होने वाला कि जितना आपने खाना खाया वो सारा का सारा खाना आपका सेल यूटिलाइज कर देगा और उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। नो, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो देयरफॉर इफ एट ऑल व्हेनेवर यू कंज्यूम द फूड, जब भी आप खाना खाते हो, उसका कुछ परसेंटेज, ठीक है, जो ग्लूकोज होता है आपके बॉडी में, जो ग्लूकोज जाता है, दिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इन वन complex form which is called as glycogen. ठीक है ना? what is this conversion? आपने खाया ग्लूकोज, बट ग्लूकोज मतलब आपने नॉर्मली कोई खाना खाया, उसके अंदर से आपको अलग अलग टाइप के सब्सटीट्यूएंट्स जा सकते हैं, आपके बॉडी में अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस जा सकते हैं, तो उसमें ग्लूकोज है। अभी बॉडी जितना ग्लूकोज आया, ज़रूरी नहीं है कि सबका सब ग्लूकोज वो यूटिलाइज कर ले, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो देयरफॉर व्हाट हैपेंस इज the body will store this extra glucose in the form of glycogen, और ये स्टोरेज कहाँ पे होता है? ये स्टोरेज होता है लिवर में। ओके, ये होता है स्टोरेज लिवर में। सो एक्स्ट्रा ग्लूकोज, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, जो बॉडी इमीडिएटली तुरंत यूज नहीं कर पा रहा है, उसको बॉडी किस में कन्वर्ट कर देता है? उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और ग्लाइकोजन स्टोर कहाँ पे होता है? लिवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, who invented penicillin? Guys, what do you mean by penicillin? Now penicillin is a type of a antibiotic. Okay, it is a type of a antibiotic. What do you mean by antibiotic? Antibiotic ऐसा मेडिसिन होता है जो बैक्टीरियाज को मार सकता है। बैक्टीरिया एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो ह्यूमंस को बहुत अलग अलग बीमारियां कॉज करा सकता है। ठीक है, सो देयरफॉर इन बैक्टीरियाज को, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, जो हमारे लिए खतरा है, उन बैक्टीरिया का डिस्ट्रॉय, उन बैक्टीरिया का डिस्ट्रक्शन करने के लिए या उन बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारे पास एक दवा है जिसका नाम है एंटीबायोटिक। अब ये एंटीबायोटिक सबसे पहला जो एंटीबायोटिक था, ठीक है, सबसे पहला एंटीबायोटिक, दैट वाज कॉल्ड एज पेनिसिलिन। उसको क्या बोला गया है? उसको बोला गया है पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन फाइंड आउट करने वाले साइंटिस्ट का नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन एंटीबायोटिक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, the longest and the largest bone in the human body is? The answer is femur. Okay, now where is the femur located? जो आपका थाई बोन, जिसको आप थाई बोन बोलते हो ना, थाई बोन, वो थाई बोन को बायोलॉजिकली आप और एक नाम से जानते हो जिसको बोलते हैं फीमर। फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन। बॉडी में जितने भी हड्डियां हैं, ठीक है, एक अडल्ट बॉडी में कितनी हड्डियां होती है? 206। सो जितनी भी हड्डियां हैं उसमें से सबसे लंबी हड्डी जो है, विद द लॉन्गेस्ट बोन, इज व्हाट इज कॉल्ड एज फीमर, एंड इट इज वन ऑफ द टफेस्ट बोन इन द बॉडी। इट इज द टफेस्ट बोन। टफेस्ट मतलब ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। बहुत रेयरली ऐसा होगा कि जहाँ पे फीमर का फ्रैक्चर हो रहा है, जहाँ पे फीमर
को कोई इंजरी हो रही है, वो बहुत ज़्यादा रेयरली होता है, अदरवाइज फीमर एक बहुत ताकतवर बोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड इन मैन। नाउ मास्टर ग्लैंड मतलब ऐसा ग्लैंड जो बाकी सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। द आंसर इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है दैट इज लोकेटेड इन द ब्रेन। समझो ये, इट इज लोकेटेड इन द ब्रेन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, very important gland because this pituitary gland will control all the other glands। ये बहुत सारे बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। अभी आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लैंड क्या होता है। ग्लैंड मतलब ऐसा बॉडी का कंपोनेंट जो हार्मोन सिक्रीट करता है। हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन एक तरीके के केमिकल्स होते हैं। यस, they are the type of chemicals which have a function to carry the message from point A to point B। ये कोई भी दो पॉइंट हो सकते हैं, ये, बट इनका फंक्शन होता है कि एक जगह से एक मैसेज उठाओ, एक सिग्नल उठाओ और दूसरे जगह पे छोड़ दो। सो देयरफॉर इन सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का जो जिम्मेदारी है वो किसका है? वो है पिट्यूटरी ग्लैंड का। सो पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। द आंसर इज विटामिन के। विटामिन के क्या करता है पता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग और कोएगुलेशन। कोएगुलेशन मतलब खून का जमना। सी, अगर आपको कभी इंजरी हो गई, ठीक है, आपको कभी कुछ लग गया, आप गिर गए या कुछ भी हो गया, तो वहाँ अगर इंजरी हो जाती है, कुछ जख्म हो जाती है, तो वहाँ से खून निकलता है बाहर, बट कुछ टाइम बाद वही खून रुक भी जाता है, बराबर। तो वो जो खून रुक जाता है वो क्यों रुकता है? बिकॉज ऑफ कोएगुलेशन और क्लॉटिंग। क्लॉटिंग एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे खून का जो बहाव है उसको रोक देते हैं, ठीक है। अभी वो बॉडी के अंदर नहीं रुकना चाहिए, बॉडी के बाहर जब खून निकलता है तो उसको जमना बहुत ज़रूरी है। तो वो जमने के लिए, खून के क्लॉटिंग के लिए जो विटामिन रिस्पॉन्सिबल है वो विटामिन है विटामिन के। विच इंसेक्ट्स स्प्रेड्स काला आजार। Now, Kala Azar is a type of infection, okay, which is generally spread by an insect called as sand fly। ठीक है, सैंड फ्लाई एक ऐसा तरीके का इंसेक्ट है जो ये इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। द आंसर इज नेफ्रॉन। आपको पता होगा किडनी का फंक्शन क्या है? किडनी का फंक्शन है प्यूरिफिकेशन, बराबर। द किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को प्यूरिफाई करता है। सो देयरफॉर द एज अ होल व्हेन वी टॉक इट इज किडनी, बट किडनी के अंदर देयर आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स, देयर आर माइक्रोस्कोपिक पार्ट्स which are responsible for actually purifying the blood, and those microscopic parts, those microscopic cells inside the kidney are what is called as nephron। Next question, what is the smallest structural and functional unit of nervous system? The answer is neuron। आपको पता होगा कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो ब्रेन कंप्लीटली रेगुलेट करता है। सिर्फ ब्रेन के साथ एक और एक हिस्सा आता है जिसको आप बोलते हो स्पाइनल कॉर्ड, बराबर। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिला के पूरे बॉडी को रेगुलेट करते हैं, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ पूरे बॉडी में एक तरीके का नेटवर्क बिछा हुआ है, एक तरीके का नेटवर्क प्रेजेंट है जिसको आप बोलते हो नर्वस सिस्टम। और यही नर्वस सिस्टम का जो इंडिविजुअल कंपोनेंट है, जो इंडिविजुअल हिस्सा है, उसको आप न्यूरॉन बोलते हो। न्यूरॉन का काम क्या होता है? एक जगह से सिग्नल उठा के दूसरे जगह पे उसको ड्रॉप कर देना, ठीक है, वो है न्यूरॉन का फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which animal have no blood but they respire? The answer is Hydra. हाइड्रा एक लोअर ऑर्गेनिज्म है जिसका रेस्पिरेशन तो हो रहा है बट वहाँ पे एज सच कोई खून नहीं। सी गाइस, एक चीज़ समझो, खून के अंदर का जो कॉम्पोजिशन है, जो खून का जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, वो लोअर ऑर्गेनिजम्स में आपको ज़्यादातर नहीं दिखेगा बिकॉज ब्लड fluid, tissue fluids, all these fluids are the product of evolution which were later developed. So lower organisms like for example hydra will not have blood as such, but they have different areas for respiration. ठीक है, अलग अलग areas होते हैं इनके पास जो respiration में इनको मदद कराते हैं. सो देयरफॉर इनके पास एज सच ब्लड नहीं है, फिर भी ये रेस्पायर कर सकते हैं बिकॉज उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कुछ उस तरीके से बना हुआ है कि वो लोग रेस्पिरेशन कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ मैन? मतलब ह्यूमंस के अंदर दांतों का अरेंजमेंट किस तरीके से है? द आंसर इज 2 1 2 3 /2 1 2 3. मतलब कैसा हो रहा है ये? 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3. ठीक है, ये क्या है? इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, इंसाइजर्स ICPM. ठीक है, इंसाइजर्स 2 ऊपर 2 नीचे से 4, कैनाइंस, प्रीमोलार्स और मोलर ऐसे मिला के टोटल इधर 4 हो गए. ठीक है, वापस ये 2, मतलब एक साइड में ना पूरा जो एंटायर जॉ है, मान लो ये आपका जबड़ा है, उसको आप ऐसे 4 हिस्सों में, ऊपर के 2 नीचे के 2 ऐसे 4 हिस्सों में डिवाइड करते हो. तो एक साइड इंसाइजर 2 है, दूसरे साइड इंसाइजर 2 है, निचला वाला हिस्सा, तो ये 4 हुए. वैसे ही कैनाइंस 2 होंगे, वैसे ही प्री मोलार्स भी 4 होंगे और मोलार्स 6 होंगे. तो इस तरीके से ऊपर 16 दांत है, नीचे 16 दांत है, टोटल बन जाते हैं 32 बराबर. सो देयरफॉर टोटल अडल्ट में जो कंप्लीटली डेवलप्ड इंडिविजुअल है, ह्यूमन है, उसका डेंटल फॉर्मूला बोले तो उसके दांत कितने हैं टोटल, उसके जबड़े में, उसके जॉ में कितने दांत है, उसको आप बोलते हो डेंटल फॉर्मूला, जिसका आंसर है 2 1 2 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, the biogas used for cooking is a mixture of, the answer is methane and carbon dioxide. ठीक है, अभी आपको पता है कि पेट्रोल, डीजल आर ऑल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. नॉन रिन्यूएबल मतलब ये एक बार खत्म हो गए तो वापस बनने नहीं वाले, दे आर नॉन रिन्यूएबल. सो देयरफॉर साइंटिफिक कम्युनिटी अभी इस तरीके से खोज करने लगा है, इस तरीके से रिसर्च करने लगा है कि जहाँ पे हम लोग को कोई ऐसा फ्यूल मिले, कोई ऐसा ईंधन मिले जहाँ से हम लोग रिन्यू कर सकते हैं उसको, हम लोग कंटिन्यूसली उसको रिन्यू कर सकते हैं, कंटिन्यूसली उसको बना सकते हैं. और ऐसे टाइप के फ्यूल का एक नाम है बायोगैस. तो जो ये बायोगैस है ये जनरली एनिमल वेस्ट से बनता है. एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट भी होता है बट एनिमल वेस्ट के अंदर जनरली क्या होता है? काउडंग, जिसको आप गोबर भी बोलते हो. तो काउडंग इज प्रेजेंट. सो ये काउडंग या एनिमल वेस्ट ये यूज होता है बायोगैस बनाने के लिए, जो आगे चल के हम लोग को 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स देता है फ्यूल के नाम पे. एक है मीथेन और एक है कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट yields biodiesel और biofuel? बायोडीजल या बायोफ्यूल मतलब ऐसा फ्यूल या ऐसा कंपोनेंट जो हम लोग को नेचुरली मिला है कोई सोर्स से. अभी यहाँ पे एक सोर्स लिया है, ठीक है, यहाँ पे एक प्लांट का नाम है जिसका नाम है जट्रोपा कर्कस. जट्रोपा कर्कस इज अ प्लांट विच can give you biodiesel or it is also called as biofuel. Again, it is a kind of a renewable source of energy because somewhere down the line we have to think about those fuels which we can renew again and again and again. Next question, the most serious air pollutant causing health hazard is, the answer is sulfur dioxide.
सो सल्फर डाइऑक्साइड एक ऐसा कंपोनेंट है जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉज करता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉजिंग है वो, एंड इट ऑल्सो अफेक्ट्स ह्यूमंस टू अ वेरी ग्रेटर एक्सटेंट। ह्यूमंस को ये बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाता है। इट कैन डैमेज आवर इंटरनल बॉडी सिस्टम्स, हम लोग को अलग अलग डिजीजेस और बीमारियां हो सकती है इसके वजह से। सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज SO2 is very very dangerous and it is a serious health hazard. Next question. Which major chemical compound found in the human kidney stones? Human के किडनी के अंदर जो एक तरीके के स्टोन्स होते हैं जिसको आप पतरी भी बोलते हो हिंदी में, वो स्टोन्स जनरली कौन से मिनरल से या कौन से केमिकल से बनते हैं? तो आंसर इज कैल्शियम ऑक्सैलेट। कैल्शियम ऑक्सैलेट एक ऐसा कंपाउंड है, एक टाइप का मिनरल है, ठीक है, जो अगर किडनी उसको एक्सक्रीट नहीं कर पाता तो वो कहीं ना कहीं किडनी में धीरे 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 डिपॉजिट होते जाता है और वो एक टाइम के बाद एक कड़क सॉलिड फॉर्म ले लेता है जिसको आप बोलते हो किडनी स्टोन्स। सो जनरली मेजर टाइप में आपको कैल्शियम ऑक्सैलेट के स्टोन्स ही मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड इज डन बाय whose chromosome? द आंसर इज फादर। अभी देखो, फीमेल के अंदर जो क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट होता है दैट इज X और X, एंड फादर इज रिस्पॉन्सिबल टू हैव अ क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट ऑफ XY। जब भी हम लोग बच्चों का सेक्स डिटरमाइन करते हैं सो इसका क्रॉस होता है। क्रॉस कैसे करते हो आप? अभी क्रॉस शॉर्टकट में अगर आपको बताओ तो XX सेपरेट हो गया, X और Y सेपरेट हो जाते हैं, फिर यहाँ पे आप मैचिंग लेते हो इनका, तो X और X, फिर वापस इसको इसके साथ X और Y, फिर इसके साथ ऐसा X और X, और फिर वापस X और Y। यहाँ पे आप अगर नोटिस करोगे तो 50% बच्चे मेल हो सकते हैं और 50% बच्चे फीमेल हो सकते हैं, पर मेल हो या फीमेल हो सिर्फ और सिर्फ Y क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है, और Y क्रोमोसोम किसके पास है? फादर के पास। सो देयरफॉर बच्चों का जो जेंडर है या बच्चों का जो सेक्स है वो फादर डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट क्लोन्ड शीप? द आंसर इज डॉली। डॉली एक ऐसी शीप है जिसको सबसे पहली बार क्लोन किया गया था। क्लोनिंग मतलब क्या? क्लोनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आप एग्जैक्टली जेरोक्स कोई भी एनिमल का, कोई भी स्पीशीज या कोई ऑर्गेनिज्म का जेरोक्स क्रिएट कर देते हो, उसको आप बोलते हो क्लोन। तो सबसे पहला बार जिसका क्लोन बना था वो था डॉली, जो एक शीप है, ठीक है। ह्यूमंस का क्लोन भी बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं, पर अभी फिलहाल उसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च हुआ नहीं है। सो ऐसे अलग अलग छोटे एनिमल्स के ऊपर इसका जो स्टडी है, इसका जो रिसर्च है वो चालू है। और ह्यूमंस को भी अगर हम कल को जाके ऐसा सोचे कि क्लोन कर पाए या कर सकते हैं तो वो थोड़ा सा अनएथिकल भी हो सकता है, तो इसके ऊपर अभी तक ऐसा कोई सॉलिड रिसर्च हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज नोन एज द किचन ऑफ द सेल? ठीक है, किचन ऑफ द सेल मतलब जहाँ पे खाना बनता है, ठीक है ना। प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके अंदर होता है क्लोरोफिल, ठीक है। ये क्लोरोफिल एक टाइप का प्लांट पिगमेंट है, एक टाइप का प्लांट पिगमेंट है जिसका फंक्शन क्या है? जिसका फंक्शन ये है कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के अंदर आपको पता है ना, प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रोप्स होते हैं। ऑटोट्रोप्स मतलब ऐसे एनिमल्स या ऐसे स्पीशीज, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद का खाना खुद बना सके, ठीक है, तो उनको आप ऑटोट्रॉप्स बोलते हो। सो ऑटोट्रॉपिक नेचर ऑफ प्लांट्स is due to presence of chlorophyll which is inside the chloroplast which is responsible for photosynthesis, that is वो खुद का खाना बना पाते हैं। as वो खुद का खाना बना पा रहे हैं because of क्लोरोप्लास्ट को आप किचन ऑफ द सेल भी बोल सकते हो प्लांट्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
enlargement of which gland takes place due to deficiency of iodine? The answer is thyroid. थायराइड एक ऐसा ग्लैंड है जो आपके बॉडी के जनरल फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, और उसको फंक्शन करने के लिए, वो जनरल मेटाबॉलिज्म कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए उसको आयोडीन लगता है। तो कहीं भी आयोडीन की कमी अगर आ जाती है तो आपको अलग अलग टाइप का थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके वजह से आयोडीन थायराइड के फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। अगर आपके बॉडी में उसका डेफिशिएंसी आ गया, अगर आपके बॉडी में उसकी कमी आ गई, तो थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, द साइज ऑफ द थायराइड विल इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट of the human brain is the regulating center for swallowing and vomiting? The answer is medulla oblongata. Medulla oblongata is the part of the hind brain. ब्रेन के जनरल 3 हिस्से होते हैं, आप समझ लो इसको। एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, और तीसरा जो होता है वो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हाइंड ब्रेन। सो ये हाइंड ब्रेन के अंदर छोटा सा पार्ट होता है विच इज कॉल्ड एज मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये सारे अनवॉलेंटरी फंक्शन, जो इनवॉलेंटरी फंक्शंस है, जैसे स्वॉलोइंग हो गया या वॉमिटिंग हो गया, उल्टी करना या कोई खाना निगलना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हालांकि आपको लगता है कि आप जब निगलते हो तो आप निगल रहे हो, बट एक्चुअली आपका ब्रेन उसको कंट्रोल करता है। और उल्टी को भी, उल्टी vomiting is not under your control. So all the involuntary activities are regulated by medulla oblongata. Next question, what are bryophytes? Bryophytes are the species of the plants which are also called as the amphibians of the plant kingdom. मतलब ये ऐसे स्पीशीज है जो जमीन पे भी आपको दिखेंगे और ये आपको पानी में भी दिखेंगे। एग्जाम्पल इज मार्केंशिया। सो देयर आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स प्लांट्स के। सो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको आप एम्फीबियन बोलते हो या एम्फीबियस सिस्टम बोलते हो, जो आपको ज़मीन पे भी मिलेंगे और आपको पानी में भी मिलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द ह्यूमन जीन इज, द आंसर इज 46। ह्यूमंस के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, या फिर आप उसको बोल सकते हैं 23 पेयर्स। यस, 23 पेयर्स बोलो या 46 टोटल बोलो, जिसमें 2 हिस्सा होता है ऐसा। एक होता है 22 पेयर का और एक होता है 1 पेयर का। 22 pairs are your body cells that are they're called as somatic chromosomes, which will be responsible for determining your normal body characters. नॉर्मल बॉडी के कैरेक्टर्स, हाइट, कलर, टेक्सचर, स्किन वगैरह वगैरह, वो सब वो डिसाइड करते हैं। और जो एक पैर बच जाता है, दैट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, वेदर इट विल बी मेल और फीमेल। सो द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस इज 46. Polio is caused by which organism? The answer is virus. पोलियो का वायरस होता है, आपको पता रहेगा, 2 बूंद। ठीक है, सो पोलियो एक टाइप का वायरस होता है विच विल अफेक्ट योर लोअर एक्सट्रीमिटी, मतलब बॉडी का निचला हिस्से पे अफेक्ट करता है। एंड ये जनरली ओरल रूप से जाता है। ये वायरस एक ऐसा वायरस है जो ओरल रूप से जाता है, मतलब खाने के पाइप से, फूड पाइप से ये अंदर जा सकता है और आपको ये वायरस पोलियो कॉज करवा सकता है, जो इवेंचुअली आपके बॉडी के निचले हिस्से को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डक्टलेस ग्लैंड्स आर नोन एज, द आंसर इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं उनको आप डक्टलेस बोलते हो। क्यों? एक ग्लैंड है, मान लो, अभी मैंने बताया ग्लैंड का फंक्शन होता है हार्मोन को सिक्रीट करना। अभी ये डक्टलेस ग्लैंड्स या एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करते हैं पता है? ये ग्लैंड्स उनका खुद का सिक्रीशन, मान लो कोई एक टाइप का हार्मोन है, वो उनको रिलीज करना, तो वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देते हैं। ये आपका ब्लड स्ट्रीम है, ठीक है, तो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाता है। इनको ना कोई सेपरेट कैनाल है,
ना कोई सेपरेट पैसेज है, ना सेपरेट कोई पाइप है जिससे ये हार्मोन अलग अलग जगहों पे जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके वजह से एंडोक्राइन ग्लैंड्स को आप डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हो। डक्टलेस ग्लैंड मतलब जिनको कोई भी डक्ट नहीं है। डक्ट मतलब कोई भी कैनाल या कोई भी पाइप नहीं है जिसके जरिए ये हार्मोन अपना हार्मोन ब्लड में रिलीज करेंगे। सो इनके पास ऐसा कोई भी जरिया या कोई भी अलग टाइप का ऐसा पार्ट नहीं है। इसके वजह से एंडोक्राइन ग्लैंड्स को आप डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन feces is yellow in color due to presence of pigment called as stercobilin। अभी stercobilin एक ऐसा प्रोडक्ट है विच इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ हीम मेटाबॉलिज्म। मतलब हीमोग्लोबिन टूटने के बाद, अभी आपको पता होगा हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन एक ऐसा पिगमेंट होता है ह्यूमन बॉडी में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन करता है, हर एक सेल तक पहुंचाता है। तो उसका जब लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा तो उसको तोड़ने के बाद दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक स्टर्कोबिलिन होता है और एक यूरोबिलिन होता है। स्टर्कोबिलिन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो फीसिस को, ठीक है, ह्यूमन के जो वेस्ट है उसको येलो कलर देता है। सो द आंसर इज स्टर्कोबिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which enzyme is found in the human saliva? The answer is ptyalin। टाइलिन और ऑल्सो कॉल्ड एज सलाइवरी अमाइलेज, ये ऐसा एक टाइप का एंजाइम है जो जनरली कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करता है। कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक कर सकता है या फिर शुगर को ब्रेक कर सकता है, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। और जनरली ये स्टार्च को तोड़ता है। जस्ट फॉर योर नॉलेज यू शुड नो दिस, इट इज गोइंग टू ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू माल्टोज। सो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ ptyalin which is released in the human saliva। Next question, Hansen's disease is also known as, the answer is leprosy। लेप्रेसी वापस एक टाइप का बीमारी है जो वापस ह्यूमन बॉडी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। एंड लेप्रेसी का एक दूसरा भी नाम है जिसको आप बोलते हो हैंसन्स डिजीज। सो इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट हैंसन्स डिजीज कैन कॉज Hansen's disease is also known as leprosy। Next question, what is the systolic and diastolic pressure in a healthy human being? Healthy human beings के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर ये दो हिस्सों, जनरली ब्लड प्रेशर ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है। एक होता है सिस्टोलिक जिसको आप बोलते हो ऊपर का प्रेशर, और एक होता है डायस्टोलिक जो होता है नीचे का प्रेशर। जनरल जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग है उनके बॉडी के अंदर 120/80 मिलीमीटर ऑफ Hg और ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। इसके थोड़ा सा भी अगर आगे पीछे गया 140/75 या 130/75 तो उसको आप हाइपर टेंशन में कैटेगराइज करोगे। हाइपर टेंशन मतलब जहाँ पे आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और आपको ब्लड प्रेशर की दवाई लेनी पड़ेगी। बट जो नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन है उनके बॉडी के अंदर जनरल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is considered as the strongest natural fiber? सिल्क। सिल्क एक ऐसा फाइबर है जो जनरली आपको सिल्क वर्म से मिलता है, ठीक है। सिल्क वर्म एक टाइप का इंसेक्ट है जो आपको सिल्क देता है, ठीक है। सिल्क अलग अलग टाइप के सिल्क होते हैं, मलबरी सिल्क, और अलग अलग इसके कपड़े भी बनते हैं, साड़ियाँ भी बनती हैं, अलग अलग वेरेबल्स बनते हैं। सो देयरफॉर सिल्क इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर्स विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द इंसेक्ट कॉल्ड एज सिल्क वर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल लीड्स टू डेंटल कैरीज? डेंटल कैरीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैविटी। जो दांतों में कैविटी होता है ना, सेंसिटिविटी होता है, फिर उसको आगे जाके अपने को अलग अलग प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं, तो रूट कैनाल जैसे प्रोसीजर करने पड़ते हैं। सो वो एक मिनरल की कमी की वजह से होता है जिसका वो मिनरल का नाम है फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेनियन सेल्स आर यूनिक टू डैश। द आंसर इज एंजियोस्पर्म्स।
एंजियोस्पर्म्स आर द टाइप ऑफ हायर प्लांट्स। जो सारे हायर प्लांट्स आप देखते हो, ठीक है, जो हायर प्लांट्स होते हैं, जो फ्रूट्स भी बना सकते हैं, जो फ्लावर्स भी बना सकते हैं, वो सारे कॉम्प्लेक्स प्लांट्स को आप एंजियोस्पर्म्स बोलते हो। और एंजियोस्पर्म्स के अंदर जनरली दो टाइप का वेसल्स होता है, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ठीक है, ये जो फ्लोएम है ये दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, एंड फूड के ट्रांसपोर्टेशन में कहीं ना कहीं कंपेनियन सेल्स भी जिम्मेदार होते हैं। सो कंपेनियन सेल्स आर दोज components of phloem which is in angiosperms. Angiosperms are the group of higher plants which have ability to produce flowers and fruits. Next question. The smallest bone in the human body is? The answer is stapes. Stapes is located in the ear. Okay. कान के अंदर जनरली 3 बोन होते हैं, मैलस, इनकस और स्टेपीज। इसमें से सबसे छोटा बोन इज स्टेपीज। ठीक है, टोटल ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा बोन स्टेपीज होता है एंड सबसे बड़ा बोन फीमर होता है। आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन फील्स fatigued due to deposition of which acids in their muscles? The answer is lactic acid. लैक्टिक एसिड आपके मसल्स को फटीग बना देता है। फटीग मतलब एकदम टायर्ड, बिकॉज अगर आप कभी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हो या फिर अगर आप कभी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो तो आपका मसल्स एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी जा सकता है। जनरली हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है, बट कभी कभी अगर मसल्स फटीग हो गए या मसल्स बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी इंटेंसिटी वर्कआउट किया है तो तब जाके आपके मसल्स कैन ऑल्सो रिस्पायर एनएरोबिकली, जहाँ पे लैक्टिक एसिड भी बन सकता है जो आपके मसल्स को बहुत ज़्यादा फटीग महसूस करवा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। How many bones are present in the human skull? The answer is 22. The total number of bones in the skull is 22, and in the entire skull only one bone is movable, which is called as mandible. मैंडिबल एक ऐसा टाइप का बोन है स्कल के अंदर, खोपड़ी के अंदर, जो सिर्फ मूव होता है, बाकी कोई भी बोन मूव नहीं होता। एंड मैंडिबल को अपन बोलते हैं जॉ। लोअर जॉ जो होता है ना, लोअर जॉ जो मूवेबल है उसको आप जबड़ा भी बोलते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच लोब ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज एसोसिएटेड विथ हियरिंग? द आंसर इज टेम्पोरल लोब। ऑडिटरी सेंसेस, इसको आप बोलते हो ऑडिटरी सेंस, मतलब सुनने की काबिलियत ब्रेन में। जब आप कान से सुनते हो सो ऑडिटरी सेंस जनरेट होता है जो ब्रेन में जाता है, और ब्रेन में जाने के बाद ब्रेन के टेम्पोरल हिस्से में, मतलब आपका साइड वाला हिस्सा, वहाँ पे जाके एग्जैक्टली वो प्रोसेस होता है। सो हियरिंग के लिए ब्रेन का टेम्पोरल लोब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। uppermost layer of the skin is called as? The answer is epidermis. एपिडर्मिस स्किन का ऐसा सबसे ऊपर वाला लेयर है। जनरली स्किन का जो लेयर है वो 3 हिस्सों में बंटते हैं। एक होता है एपिडर्मिस, दूसरा इज कॉल्ड एज डर्मिस, and the third is what is called as hypodermis. So there are 3 important layers. तो सबसे ऊपरी वाला लेयर को आप बोलते हो एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटर स्किल्स आर एसोसिएटेड विथ विच पार्ट ऑफ द ब्रेन? द आंसर इज फ्रंटल लोब। ब्रेन का जो सबसे आगे वाला हिस्सा है वो ज़्यादातर काम आपके करता है। मेमोरी हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, देन थिंकिंग कैपेसिटी हो गया, देन मोटर स्किल्स हो गया। सो एवरी कंट्रोलिंग थिंग्स, एवरीथिंग, माइंड का जो प्रोसेस है वो सारा फ्रंटल लोब्स ही करते हैं ब्रेन का। इसके वजह से ब्रेन का जो फ्रंटल लोब है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, blood group was discovered by whom? The answer is Landsteiner. Now Landsteiner was the scientist who discovered the blood groups. आपको पता ही होगा blood groups अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि A, B, then you have AB and O. ये 4 जनरल ब्लड ग्रुप है और ह्यूमंस के अंदर हम लोग जो ब्लड ग्रुप सिस्टम फॉलो करते हैं दैट इज ABO blood grouping system. We follow ABO blood grouping system, very important to note. Yes, and then you can have a positive or a B positive or B, AB positive or a AB negative or O positive or O negative. So depends on the which kind of blood group or which type you have. But generally हम लोग humans के अंदर blood group का जो determination system है वो ABO का होता है. Next question, the pH value of human blood is? The answer is 7.4. ह्यूमन का जो ब्लड है ना वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है, ठीक है, विद अ pH ऑफ 7.4. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना चाहिए ये. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज लिवर. यस, लिवर सबसे बड़ा ग्लैंड है जिसका वजन 1.5 kg तक है, ठीक है. द वेट ऑफ द लिवर इटसेल्फ इज 1.5 किलो. सो 1.5 किलो बहुत ज़्यादा वजन है फॉर अ ह्यूमन बॉडी एंड वो सबसे बड़ा ग्लैंड है बॉडी में. सबसे टोटल ग्लैंड्स में, टोटल बॉडी के ऑर्गन्स में सबसे बड़ा पार्ट जो ऑक्यूपाई करता है वो लिवर है और उसका वजन 1.5 किलो तक हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the chemical name of the substance which kills rats? Now white phosphorus is a chemical substance which is responsible for killing of rats. Next question, the metal present in the hemoglobin is? The answer is iron. आयरन एक ऐसा कंपाउंड है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है. आपको ये तो पता होगा कि आप जब ऑक्सीजन लेते हो तो इट गोज टू द लंग्स, बराबर. लंग से हीमोग्लोबिन या ऑक्सीजन को उठा लेता है और ये ब्लड में जाके टिश्यू तक पहुंचता है. ओके, अभी सेम साइकिल वापस फॉलो होगा, बट अभी क्या होगा, हीमोग्लोबिन के पास जो ऑक्सीजन था वो तो टिश्यू और सेल तक पहुंच गया और वो सेल ने बदले में CO2 दे दिया जो वापस यही साइकिल फॉलो करके बाहर आ जाता है. तो मतलब आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हो, ठीक है. सो ये पूरे प्रोसेस के अंदर जो मिनरल, जो एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है ये चीज करने के लिए, उसका नाम है आयरन. नेक्स्ट क्वेश्चन, which mosquito is the carrier of Zika virus? The answer is Aedes. Aedes is a type of a mosquito, ठीक है. जैसे कुछ मॉस्किटो, फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटोज, देयर आर वेरियस स्पीशीज ऑफ मॉस्किटो, उसमें से एक एडीज है जो एक टाइप का वायरल इन्फेक्शन कॉज कर देता है विच इज कॉल्ड एज जिका वायरस. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द गैस यूज्ड फॉर मेकिंग वेजिटेबल घी. द आंसर इज हाइड्रोजन. हाइड्रोजन, घी आपको पता है कि घी इज अ टाइप ऑफ अ फैट, राइट. सो फैट्स के अंदर यू विल हैव अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंटल कॉम्पोजिशन है कोई भी फैट के. सो उसमें वेजिटेबल घी जो होता है, जो आप कुकिंग में यूज करते हो, उसके अंदर हाइड्रोजिनेशन होता है. हाइड्रोजिनेशन मतलब जहाँ पे हाइड्रोजन यूज होता है. सो देयरफॉर वेजिटेबल घी जब बनता है तो उसके अंदर हाइड्रोजन का यूज होता है. इसके वजह से द गैस विच इज रिस्पॉन्सिबल इज हाइड्रोजन. नेक्स्ट क्वेश्चन, which part of the brain is center of thirst, hunger and sleep? The answer is hypothalamus. Hypothalamus brain का सबसे important हिस्सा है. It is the extremely important part of the human brain because it is responsible for controlling almost everything. जो भी एक्टिविटीज हो रहे हैं, जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बॉडी में हो रहे हैं, सबको रेगुलेट करने का जिम्मेदारी हाइपोथैलेमस का होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेगुलेट्स द क्वांटम ऑफ लाइट एंटरिंग द ह्यूमन आई? द आंसर इज आइरिस. आइरिस एक ऐसा पोर्शन है आंखों का
जो कलर भी देता है, मतलब किसी किसी के आँख देखो, आपने देखा होगा ब्लैक होते हैं, किसी किसी के ब्राउन होते हैं, किसी किसी के ब्लू होते हैं, ग्रीन होते हैं। सो अलग अलग कलर और वेरिएशंस आपको दिखते हैं। सो वो आइरिस है। आइरिस एक ऐसा पार्ट है जिसके बीचों बीच एक छोटा सा एरिया होता है जिसको आप बोलते हो प्यूपिल, और यही प्यूपिल का टोटल एग्जैक्टली आइरिस के आसपास कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर देता है डिपेंडिंग अपॉन कितना लाइट आंखों के अंदर आना चाहिए। सो आइरिस एक ऐसा पार्ट है जो लाइट को रेगुलेट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ प्यूपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA stands for, the answer is deoxyribose nucleic acid। DNA का फुल फॉर्म होता है deoxyribose nucleic acid। DNA जैसा और एक कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं RNA। RNA का फुल फॉर्म इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये भी आपको याद होना चाहिए। ये पूरा का पूरा सीरीज इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। So in the part 1 we discussed few questions. In the part 2 we will continue the next set of questions. I hope आपको ये questions important लगे होंगे, informative लगे होंगे. If at all you have any doubts, feel free to comment it in the comment section. I will try my best to answer each and every question you have. If you like our efforts, if you like our video, please consider liking the video, sharing it with your friends, and also subscribing to our channel. Till then, stay safe and thank you very much.